आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के आजमाइशी टीके आज दिए गए। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के तिलक नगर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली में सरकारी अस्पताल, सोमाजीगुड़े में वाक़ई यशोदा अस्पताल में ये टीके दिए गए। इसी तरह जिले महबूबनगर के जानमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिला मुस्तखिर के अस्पताल, नेहा शाइन अस्पताल में ये आजमाइशी टीके दिए गए। हर एक मरकज में 25 से 30 हेल्थ वर्कर्स आम शहरियों का इंतखाब करते हुए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस टीके को लेने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने वाले उनकी तफसीलात का ऑनलाइन इंदराज किया गया। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के 13 अजला में ये आजमाइशी टीके दिए गए। हेल्थ वर्कर्स का इंतखाब करते हुए उनको ये टीके दिए गए। खबरजी इस सिलसिले में उन हेल्थ वर्कर्स को SMS भेजते हुए इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आगाह किया गया। बकिया अजला समेत जिले कृष्णा में भी आजमाइशी टीके दिए गए। हर जिला मुस्तखर में लाजमी तौर पर एक मरकज बनाने के इक़दाम किए गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का भी इस मकसद के लिए इंतखाब किया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तिलक नगर में वाक़े PHC सेंटर पहुंचकर इस वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लिया। हम सेकंड फेज లో ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్కర్స్ లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి శానిటేషన్ వర్కర్స్ వస్తారు మ్యామ్, తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారు మ్యామ్, పోలీస్ పర్సన్ వస్తారు. దీస్ ఆర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్కర్స్. ఇన్ హైదరాబాద్ వి హావ్ 78,000 healthcare workers across the 2.88 lakhs including Anganwadi workers, including so overall in first phase 1 and 2 categories around approximately 5 lakh beneficiaries will be there. Yes. We are ready actually. Every session beneficiary. Where it has to come, when it has to come, and who is going to apply, everything will be there. Even the time slot. Oh, time slot. 25 time slot will be there. Doses we can keep, sir. That means at the state and regional level, 3 crore doses we can keep at a time. Apart from the primary health centers, ILR. Madam, doctor, madam. Fine. మీరు ఏ పని చేశాను? Identifying the beneficiaries, and beneficiaries list already they have prepared, and in 4 phases it's going to be given. Totally 80 lakh beneficiaries are there in the state. For them, first phase is going to be given for 5 lakh beneficiaries, and here they have made very good arrangements, and people needn't worry about the reactions. It's a very safe vaccine, and here also for half an hour they are asking them to wait, and even all the syringes are locked syringe, even excess cannot be given, and it's a very good setup, and all qualified persons, doctors to handle the situation. And you have to propagate. I appeal to media, there should not be any vaccine hesitancy among the people, because people should not hesitate to get the vaccine. A survey says even 40% of the health workers are hesitant to take the vaccine. All over the world, they are taking the vaccine. Nobody has lost their life because of vaccine. So they should be very confident. And I congratulate the government, for central government, for making this possible, and the state government for making all these arrangements. And I salute the healthline workers. Because of them only we are all protected. But taking the vaccine also, everyone should be very careful. They have to wear the mask, they have to maintain the social distance, they have to wash their hands, and they should be very careful. And I'm really very happy. 2020 was an year of pandemic. Because of our scientists and because of our government, and Honorable PMO visited here the vaccination center, production center, and because of that now 2021 is going to be a वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में 10,000 मुख्तलिफ ओहदों के तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के वैक्सीन देने की तरबियत दी जा चुकी है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में भी किसी भी वैक्सीन के लिए जो अमल हुआ करता था उसी के मुताबिक हफ्ते के दिन कोरोना वायरस का ड्राई रन किया गया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि एक दिन में 10,000 तिब्बी अमला यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन दिए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इशारा दिया है कि 5 लाख डोजेस इब्तिदा में दिए जाएंगे। फिर एक बार ये कहा कि 10 लाख वैक्सीन दिए जाएंगे। इसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन देने की बात कही है। वैक्सीन जिस तरह से हासिल होंगे उसी के मुताबिक वैक्सीन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले महकमे सेहत में काम करने वाले अमले को वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद महकमे दाखिला को दिया जाएगा, उसके बाद गरीब आवाम को ये दिया जाएगा। ले 189 जो जयंती उत्सव देश के हर एक राज्य के अंदर जो मना रहा है, एक स्पिरिट है। पहले वुमेन एजुकेशन के लिए जो लड़ा था और पहले टीचर जो बना था और पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल रख के संपूर्ण एजुकेशन के लिए जो लड़ाई चला था, आने वाला दिन में महिलाओं का हक के लिए जो सावित्री फुले जी ने जो हमको आदेश दिया था, जो रास्ता बताया था, वही रास्ता में आने वाला दिन में फाइट करने का आज हम प्रॉमिस किए थे। ये नया साल वैक्सीन है सर, इसके बारे में कुछ कोविड वैक्सीन आज हमारे राज्य के अंदर जो ड्राई रन चल रहा है, 5 लाख डोसेस अभी जो फ्रंट में काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पहले देने के लिए हम प्लान किए थे। तेलंगाना राज्य के अंदर 10,000 सेंटर्स में देने के लिए जो सूचना दिया था, मगर 10,000 लोग उनको टेक्निकली क्वालिफाई करके उनको कुछ ट्रेनिंग दे के रेडी करके रखा है। एवरी डे 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने के लिए हमारा बस ताकत है। वो वैक्सीन 5 लाख आने के बाद 10 लाख एक बार आता बोल के जो इंडिकेट किया था, इसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन के लिए हम पूछे थे। वो वैक्सीन पहले फोरफ्रंट में काम करने वालों को, सेकंड जो गरीब लोग जो बस्ती में जीवित करता है वो लोगों को देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 8,44,42,687 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 18,37,442 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,03,05,788 हो गया, जबकि 1,49,218 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,87,108 हो गई है और 1,546 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 293 नए मामले सामने आए और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 5,571 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की तामीर-ए-नौ का काम तेजी से जारी है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने अचानक दौरा करते हुए तामीरी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के ओहदेदारों और तामीर करने वाली एजेंसी के जिम्मेदार अफराद के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए डेली वर्क चार्ट का भी जायजा लिया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की सोच के मुताबिक सेक्रेटेरिएट तामीर होना चाहिए। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेक्रेटेरिएट की तामीरी काम अंजाम देने वाले 2,500 मुलाजिमीन के रहने के असरी सहूलियात से लैस वर्कर्स कॉलोनी भी कायम की गई है। उन्होंने बताया कि कंक्रीट बाहर से लाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने बताया कि यौमिया 300 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 2,500 सीमेंट के थैले तामीरी काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट की अहम इमारत की खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो इमारत तामीर की जा रही है वो 150 साल तक बरकरार रह सकती है और ये इमारत का काम 12 महीने में मुकम्मल किया जाएगा।
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆలోచనల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రపంచం అబ్బురపడేలా అన్ని వసతులతో అన్ని సౌకర్యాలతో ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఒక మంచి సెక్రటరియట్ భవనం ఉండాలని చెప్పి మరి వాళ్ళ R&B శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆ భవన నిర్మాణ పనులు మొదలైనవి. పనులు చురుగ్గా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ ఈ పనులు దక్కించుకున్నటువంటి షాపూజీ సంస్థ వారు కూడా ఈ పనులలో చురుగ్గా పాల్పంచుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ 2500 మంది కార్మికుల కోసం వారు ఉండటానికి మంచి అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళ కోసం మంచి టాయిలెట్స్, మంచి సౌకర్యం అంటారు. వారు ఉండటానికి హైజీనియస్గా పరిశుభ్రంగా. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कमर्शियल टैक्स और आबकारी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 3 महीने में रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करें। ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि टैक्स वसूल करने के लिए टीम वर्क की तरह काम करें और आमदनी में इजाफा करें। सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही महकमे आबकारी में 131 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 14 नए आबकारी स्टेशन की मखलूआ जायदादों को मंजूरी दी जाएगी। सोमेश कुमार ने बताया कि महकमे कमर्शियल टैक्स में 161 जायदादों पर तकर्रुरात का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ये तकर्रुरात तरक्की के जरिए ही मुमकिन है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटेरिएट, HOD और जिला कैडर के तरक्की देने के अमल जनवरी के महीने के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। BR के भवन में नए साल के मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों और अमले के साथ मिलकर केक काटा और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत के फैसले और बहबूद प्रोग्राम को आवाम तक ले जाने के लिए तमाम महकमे जात टीम वर्क की तरह काम करें। वजीर IT KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में हफ्ते के रोज तेलंगाना राष्ट्र समिति स्टूडेंट्स विद्यार्थी TRSV के जेर एहतमाम तैयार करदा 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तुलबा की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि TRSV तुलबा के तमाम मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाने के लिए भी एक अहम रोल अदा कर रही है। इस मौके पर TRSV के रहनुमा रवि किरण और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर KT रामाराव में वजीर आला बनने की तमाम तर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए KTR की काफ़ी सताइश की, जो वजीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि KTR को वजीर आला बनाने के सिलसिले में हुक्मरान जमात TRS में क्या बातचीत हो रही है वो उससे वाकिफ नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी ने भी उनको हल्के असेंबली नागार्जुना सागर से मुकाबला करने के बारे में नहीं कहा। ताहम उन्होंने कहा कि अगर इस हल्के पर इत्तेफाक राय के जरिए उम्मीदवार का इंतखाब होता है तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासत में इस्तेमाल होने वाली जबान नामुनासिब है। TPCC के सदर N उत्तम कुमार रेड्डी जनगांव के DCC प्रेसिडेंट जंगा राघव रेड्डी पर झूठे मुकदमा दायर करने पर TRS हुकूमत पर सख्त तनकीद की। आज उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस MP कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन ने वरंगल पहुंचकर जनगांव DCC प्रेसिडेंट जंगा राव से मुलाकात की। उन्हें वरंगल सेंट्रल प्रिजन में कैद करके रखा गया है। उन पर जो मुकदमा आयद किया गया है उसको उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि यह फर्जी मुकदमा है और कांग्रेस के कायदीन को हरासा करने के लिए रियासती हुकूमत ऐसे मुकदमा दर्ज कर रही है।
అయిపోయిన సమయం ఇక అది పతనం అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఒక కులపిచ్చితో ఇతరులని అణిచివేసే కార్యక్రమం చేపడుతున్నారు. పోలీసులు వాళ్ళ తొత్తులు వ్యవహరిస్తారు. జంగారాఘవ్ రెడ్డి ఇంటిలో గడ్డి బాంబు తగలబెడితే ఎందుకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయలేదు? ఎందుకు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయలేదు? జంగారాఘవ్ రెడ్డి ఇంటి మీదకి పోయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని హరాస్ చేసిన పోలీస్ అధికారుల మీద ఎందుకు చర్యలు లేవు? జంగారాఘవ్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేసే సమయంలో ఆ సిఐఎస్ఐ దుర్భాషలాడి చేతులెత్తింది ఎవరు? ఎందుకు యాక్షన్ లేదు? సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వామి అంట. నేను దయచేసి మీ సిఐలకు ఎస్ఐలకు కూడా చెప్తున్నా, బాబు హలో ఉండనివా? कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी पार्टी छोड़ने से पहले ओहदे से इस्तीफा दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ब्लैकमेल की सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी का जो बयान है वो काबिल मजम्मत है। बाज़ कायदीन अपने अपने शख्सी मफादात की खातिर पार्टी तब्दील कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शख्सियत पार्टी से बड़ी नहीं होती है। तो 33 जिलों में 20 डिस्ट्रिक्ट अब ये चुनाव में जाते हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वैसी नलगोंडा, खम्भम, वारंगल, ये सब चुनाव में जाते हैं। उसमें वोटर कौन है? यही एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज समझो या टीचर समझो, वैसे यही बेरोजगार नौजवान। अब क्या हो रहा है? चुनाव आ रहे हैं ना साहब, उन लोगों को कैसा फिर नजदीक लेने की कोशिश करना, उन लोगों को कुछ उम्मीद दिलाना। अब यही उम्मीदें 6 साल से गुजर जा रहे हैं, नहीं तो करने के नहीं है। अब चुनाव को नजर में रखते हुए ऐसी एक लीक छोड़ देते, उनकी मुंह से जबान से तो नहीं बोलता, एक लीक छोड़ दिए, हम फिटमेंट देने वाले हैं पीआरसी, हम ये खाली भर्ती कर रहे, समझो टीचिंग स्टाफ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो खाली भर्ती कर रहे और प्रमोशन दे रहे। कई को चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना सर, अगर सही भी आपको नियत रहे तो, एक जबान की लीडर रहे तो, आप एक जबान की लीडर रहे तो पहले एम्प्लॉयज को जो देने की पीआरसी है, पे रिवीजन कमीशन, पहले फिटमेंट है, ये पहली फर्स्ट वीक में ऐलान करो। कल एक मीटिंग बुलाओ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन, टीचर्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन एक मीटिंग बुला के गए 100 मरतबा 43% दिए साहब। अब उससे बढ़कर क्या दे सकते? ऐलान करके वो भी कब से? जुलाई 18 से अमल में आना, जुलाई 18 से अमल में आना, 2018 जुलाई से अमल में आना। वो एक चीज, ये प्रमोशन जो देने की है, पर एक कैलेंडर अनाउंस करो। साबिक रुकन असेंबली के वेंकट नरसैया तवील अलालत के बाद चल बसे। उनकी उम्र 87 बरस की थी। उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश असेंबली में सीपीआईएम की तरफ से जिले खम्मम के मधिरा हल्के की 2 मरतबा नुमाइंदगी की थी। ताहम पार्टी क़यादत के साथ हुए इख्तलाफात के बाद उन्होंने 2009 में पार्टी छोड़ दी थी। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2021 का आज तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदर नशीन जस्टिस जी चंद्रैया के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाया। इस मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अराकीन डी अमर, एमए माजिद, TUWJ के सदर शेखर, जनरल सेक्रेटरी विराहत अली और कई सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे।
అన్న మధ్యలో రాదు అది ఫోన్ చేస్తుంది ఇక్కడ మాట్లాడకండి जर्नलिस्ट यूनियन का तरफ से डायरी रिलीज करने के लिए हमको यहाँ इनवाइट किया है। यहाँ पर भाई लोगों को देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो गया। तो ये डायरी 2021 के बारे में है। डायरी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो बहुत खुशी की बात है। आजकल डायरी का इम्पोर्टेंस लाइफ में बहुत है। पूरा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए रोज़ाना क्या काम करते, क्या करना है, एक प्रोग्राम का जैसा तैयार करने के लिए डायरी का बहुत अवसर है। इसलिए मेरे को बहुत खुशी है। ये डायरी के बारे में बात करने के सिलसिले में हम भाई लोगों को ये बोलना चाहता है, ये पत्रिका विभाग में जितने लोग काम करते हैं वो लोगों को राज्यांग के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक अवगाहना रहना बहुत जरूरी है। राज्यांग पीठ में राज्यांग के बारे में नहीं तो कंट्री के बारे में 5 वर्ड्स लिखा हुआ है। एक है सॉवरिन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलर, चारवा है डेमोक्रेटिक एंड फिफ्थ वन द रिपब्लिक। these 5 वर्ड्स के बारे में पत्रिका रंग में जितने लोग हैं अवगाहना डेवलप होने का बहुत जरूरी है। और लोगों के हक के बारे में 4 वर्ड्स लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में। एक है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 4 वर्ड्स के बारे में भी बहुत सोचने का है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना के जिले महबूबनगर की नौजवान लड़की हलाक हो गई। उसकी शिनाख्त 20 साल रक्षिता के तौर पर की गई। वो 31 दिसंबर को सिडनी में अपनी गाड़ी में जा रही थी कि हादसा पेश आया। फौरी तौर पर मालूम ना हो सका कि हादसा कैसे पेश आया। ताहम इस हादसे के बाद उसको जहनी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया, यानी ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इसके वालिदैन को इस हादसे की इतला दी गई, जिसके बाद उसके वालिदैन उसके आज़ा का अतिया देने के लिए आगे आए। ये लड़की एमएस की तालीम के लिए 1 साल पहले सिडनी गई थी, जहां की IIB-IT यूनिवर्सिटी से वो तालीम हासिल कर रही थी। रक्षिता वेंकट रेड्डी की बेटी थी, जो साबिक फौजी हैं। वो फिलहाल हैदराबाद के DRDO में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हैदराबाद के मीरपेट में मुकीम है। बेटी की मौत पर इस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। दलित फिजियोथेरेपिस्ट से शादी करने पर अपने दामाद का कत्ल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के अदोनी में पेश आई थी। गिरफ्तार शुदगान में मकतूल का ससुर और उसका भाई भी शामिल है। मुलजिम की शिनाख्त चिन्ना एरन्ना और उसके भाई पेद्दा एरन्ना के तौर पर की गई। दोनों का ताल्लुक जिले गुंटूर के गुरजाला टाउन से है। अदोनी पुलिस ने कहा कि मुलजिम की बेटी फिजियोथेरेपिस्ट एडम स्मिथ से मोहब्बत करती थी। इन दोनों ने 6 माह पहले हैदराबाद की आर्या समाज मंदिर में शादी कर ली थी, जिसके बाद लड़की के वालिदैन और उसके रिश्तेदार उससे नाराज थे, जो इस रिश्ते के मुखालिफ थे। दोनों मुलजिमीन ने घर वापस होने वाले स्मिथ का ताक़ुब करते हुए लोहे की सलाखों से उस पर हमला कर दिया और बाइक से उसके नीचे गिरने पर उसके सर पर वजनी पत्थर डालकर उसका कत्ल कर दिया। इस वारदात के बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए थे। स्मिथ के इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। स्मिथ की बीवी महेश्वरी ने कहा कि पहले ही उन्होंने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की थी, क्योंकि उसके ख़ानदान ने चंद हफ्ते पहले उनको धमकियां भी दी थी। उसने कहा कि उसके वालिदैन ने उसके रिश्ते की मुखालिफत की थी, क्योंकि स्मिथ दलित था और उसका ताल्लुक OBC के कारवा तबके से है।
नए साल के दूसरे ही दिन दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 9 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हो गए। मशरकी गोदावरी जिले के रावुलापालम मंडल के गोपालपुरम की कौमी शाहराह पर लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। ये लॉरी कड़पा जिले से टमाटर के लोड के साथ काकीनाडा जा रही थी। उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी बाइक से टकरा गई। सुबह की अवलीन सातों में पेश आए इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त गोपालपुरम के रहने वाले 21 साला सतीश, 20 साला चिंटी और कुत्तापेट मंडल के सुरेंद्र के तौर पर की गई। इतला मिलते ही पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरा हादसा जिले विजयनगरम में पेश आया। जिले के सत्यानगर मंडल के लच्चयापेट के करीब आज सुबह की अवलीन सातों में लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। खम्मम जिले में पेश आए तीसरे हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। जिले के कामेपल्ली मंडल के करीब ये नौजवान जा रहे थे कि गाड़ी का तवाजुन खो देने के नतीजे में ये बाइक सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में ये दोनों शदीद जख्मी हो गए। उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तेलंगाना में बढ़ते सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस सख्त इकदाम कर रही है। लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हुए हलाकत का सबब बनने वाले अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 304 के सब सेक्शन 2 के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस दफा के तहत मामला दर्ज करने पर कम से कम 10 साल की सजा की गुंजाइश है। मौजूदा तौर पर हैदराबाद में ही इस दफा के तहत मामला दर्ज किए जा रहे हैं। जल्द ही रियासत भर में इस पर अमल किया जाएगा। मौजूदा तौर पर हालत नशा में गाड़ी चलाने वाले अफराद को 1 या 2 दिन की सजा को यकीनी बनाया जा रहा है। अब इस तरह की खिलाफ वर्जी करने और किसी की हलाकत का सबब बनने पर ताज़ीरात हिंद की दफा 304 के सब सेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज करने पर कम से कम 10 साल की सजा की गुंजाइश होगी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हुदूद में 1 जुलाई 2016 को पेश आए सड़क हादसे में 9 साला लड़की रमिया की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पहली मर्तबा इस सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया था। रियासत भर में जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। चलते कंटेनर में आग लग गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के भिकनूर की कौमी शाहराह पर पेश आया। निजामाबाद जिले से एक कंटेनर हैदराबाद जा रहा था, ताहम कामारेड्डी में अचानक उसमें आग लग गई। गाड़ी में आग को देखकर उसके ड्राइवर फौरी तौर पर उससे कूद पड़ा। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। आग के शोले काफी बुलंद नजर आ रहे थे। इस वाकये के साथ ही राहगीरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कई अफराद ने इस वाकये का वीडियो अपने सेलफोन में कैद करते हुए इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया। इस वाकये के साथ ही इस मसरूफ तरीन सड़क पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई, जिसकी इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ट्रैफिक को बाकायदा बनाया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।